just brief the students about today's session, and then you share your. Okay, okay. Hello. Viransu sir, Today we are going. Uh, you are not audible, sir. Now I am audible, sir. Yes. Now you are audible. Okay. Okay, dear student, today we are going to discuss the composite material and what is the use of composite materials, what is the how do we manufacture the composite material, and what is the classification of composite material. This is your midterm composite material. This is the chapter number 3rd, composite material and its application in engineering field. So this is common for both DIT as well as BTech. So today I'm going to discuss for this lecture for both this benefit to all the students. So be careful, and I have already uploaded the PPT on your Swadhyay account. So if you have any doubt, please ask me. If you have, please go through all the slides. These are very comfortable, and if you have any doubt, you can ask me anytime after class also. Now I am audible. Yes. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. The sound is fine. Go ahead. Okay, sir. Thank you. Okay, so first we start with the what is the content in this my PPT. First is the introduction. What is the composite? How we manufacture the composite? What is the composition of the composite? Why we manufacture the composite? And where we use the composite. Next is the classification of composite material. How we classify the composite material? There are different types of classification according to the engineering application and according to the manufacturing process. Okay. So second is the classification of composite material. Third one is the factor affecting properties of composite material. It is the very important. Like if you want to manufacture the any engineering material, you have to consider the property, because the property is very important for any engineering material. So composite is the engineering material. So किसी भी इंजीनियरिंग मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका प्रॉपर्टी जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो आपको उसकी प्रॉपर्टी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसके फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, फिर उसको कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा. देन इज द एडवांटेज और लिमिटेशन. अब जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल है सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, सबके कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं. तो कंपोजिट के क्या एडवांटेज है और व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर द कंपोजिट, उनके क्या लिमिटेशंस हैं. देन डिफरेंस बिटवीन द स्मार्ट मटेरियल एंड कंपोजिट मटेरियल. नाउ स्मार्ट मटेरियल इज आल्सो अवेलेबल. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिट मटेरियल एंड smart material we discuss. Then we discuss with the what is the application of composite material in civil engineering, mechanical engineering and other engineering field. Then we discuss conclusion. Now we start the introduction. So first of all, a composite material is defined as a composite material is defined as combination of two or more material. So first, whenever anybody when you ask from you what is the composite, then first you have to answer कि composite is the combination of two or more than two material. So हमेशा याद रखना है कि composite जो है two or more than two material का combination होगा. Having, अब जो दो मटेरियल होंगे उसमें से दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकता है. आई एम ऑडिएबल? Yes, sir.
ओके, सो जैसे भी आपको पूछना है कि दो कॉम्बिनेशन होगा, दो और दो से ज्यादा मटेरियल का, और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है हैविंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो जनरली वो दोनों के डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक नया मटेरियल बनाते हैं, दैट्स रिजल्ट इन बेटर प्रॉपर्टी। हम क्यों कॉम्बिनेशन करते हैं? क्योंकि हमको बेटर प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे स्टील का है, स्टील में क्या है कि रस्टिंग होता है, कोरोजन होता है, डिग्रेड। अब रस्टिंग और कोरोजन के कारण उसका जो लाइफ होता है स्टील का वो कम होता है, तो हमको ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो स्टील से बढ़िया हमको प्रॉपर्टी दे। तो हम क्या करते हैं कि स्टील में क्रोमियम को ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में कोरोजन नहीं होता है। तो सेम थिंग यहाँ आपको कंपोजिट के केस में है। जैसे आपको फाइबर है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ अदर मटेरियल को कंबाइन कर देते हैं तो फाइबर बन जाता है, फाइबर आपको बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो कंपोजिट बनाने का पर्पस क्या होता है कि उसको दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम कंबाइन करेंगे, जिससे हमारा जो नया मटेरियल बनेगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पहले से बेटर होगा। These are the individual so first, what is the definition, exact definition of the composite material? A composite material can be defined as the combination of two or more material having significantly different physical or chemical property that result in better properties and those of the individual component. अब इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो प्रॉपर्टीज है उससे हमको बेटर प्रॉपर्टी मिल गया। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट थिंग इज द कंस्टिट्यूएंट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द कंपोजिट। अब क्या है कि जो कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, जिससे वो मिलके बना है। जैसे दो मटेरियल है, एक आयरन है और एक स्टील है। तो जब हम मिक्स करके जो नया मटेरियल बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आयरन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर दे, आयरन के पास भी अपनी प्रॉपर्टी रहे और स्टील का भी प्रॉपर्टी उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, तो वही कंस्टिट्यूएंट होता है जो जिसे मिलके बना होता है। The constituent retain their identity in the composite, that is, they do not dissolve or otherwise merge. तो dissolve नहीं होना चाहिए, merge नहीं होना चाहिए in each other. Third point is composite are one of the most widely used material. सबसे ज्यादा मटेरियल यूज होता है कंपोजिट एरोस्पेस में। जितने भी आपको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस हैं, जैसे बॉयलर है, टरबाइन है, जितने भी हाई टेम्परेचर है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो मटेरियल है। आजकल फाइबर ग्लास है, सिरामिक है, बहुत तरह के मटेरियल है जिसमें हम कंपोजिट को यूज करते हैं बना के। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे हम कंपोजिट को मैन्युफैक्चर करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, द मेन एडवांटेज ऑफ कंपोजिट मटेरियल आर देयर हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। अब क्या देखिए, हाई स्ट्रेंथ मतलब वेट कम होता है और स्ट्रेंथ हमको बहुत ज्यादा मिल जाता है कंपोजिट बनाने के बाद। तो कंपोजिट को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है कि इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी हमको मिले, इम्प्रूव्ड प्रॉपर्टी मिले इसके लिए हम कंपोजिट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इसके पास, कंपोजिट के पास हाई स्ट्रेंथ और स्टिफनेस होता है। स्टिफ मटेरियल मतलब जैसे ही आप इम्पैक्ट लोड लगाओगे तो उसको सस्टेन करने की प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा होती है। ऐसे बोलते हैं मटेरियल बहुत ज्यादा स्टिफ है, यानी उसमें क्या है कि जैसे भी इम्पैक्ट लोड लगे तो उसको सस्टेन करता है, इजिली सस्टेन करता है, ब्रेक नहीं होता है। कंबाइन विद लो डेंसिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लो डेंसिटी, क्योंकि एरोस्पेस में जितने भी मटेरियल यूज होते हैं, जो एरोप्लेन में जो बाहर का बॉडी उसका बना होता है उसमें कंपोजिट यूज होता है। तो क्या होता है कि उसमें बहुत हाई स्पीड से वो फ्लाई करते हैं, तो उसमें हमको बहुत ही हल्का मटेरियल चाहिए, और जिसकी हल्का कब होगा, जब उसकी डेंसिटी कम होगा। और स्ट्रेंथ हमको बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से फ्लाई करता है, उस पर रिएक्शन फोर्स ज्यादा लगते हैं, उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो वहां पे मटेरियल चाहिए जिसकी हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, हाई स्टिफनेस चाहिए, और डेंसिटी हमारा लो चाहिए। डेंसिटी लो होगा तो वेट लो होगा, और ये सारी चीजें प्रॉपर्टी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए कंपोजिट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। देन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल। क्लासिफिकेशन, अब द कंपोजिट आर क्लासिफाइड एज मेनली टू कंस्टिट्यूएंट्स आर मैट्रिक्स एंड रेनफोर्स। जब भी आपको कोई पूछे कि कैसे आप क्लासिफाई करोगे कंपोजिट को, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दो चीज इसमें, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है रेनफोर्समेंट। जो बल्क अमाउंट में होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जो थोड़े बहुत अमाउंट में मिलाते हैं उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। रेनफोर्स मतलब मिलाना, रेनफोर्स कर दिया, किसी चीज को मिला दिया। अब हमारे पास बल्क में मटेरियल था, उसमें हमने थोड़ा सा मिला दिया,
इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो चीज महंगा है या जिसके पास हाई स्ट्रेंथ है उसको थोड़े अमाउंट में मिला के जो कम स्ट्रेंथ वाले मटेरियल है उसको हाई स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है, पॉलीमर, पॉलीमर एक प्लास्टिक का टाइप है जो बायोडिग्रेडेबल जितने भी पॉलीमर हैं आपको प्लास्टिक है वो पॉलीमर है। पॉलीमर में थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक, एक बायोडिग्रेडेबल एक मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब रीमेल्ट किया जाता है, एक रीमेल्ट नहीं किया जा सकता है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे प्लास्टिक में कि थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक आगे डिस्कस करना है अब इसको क्या होता है थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। तो मैट्रिक्स में फर्स्ट हो गया पॉलीमर, पॉलीमर के दो टाइप हो गए थर्मोसेट एंड थर्मोप्लास्टिक। देन मेटल, मेटल में भी हम अलवाय जितने भी मेटल के अलवाय जो यूज कर सकते हैं, स्टील, एल्युमिनियम, निकेल, क्रोमियम, आपको वेनेडियम, ये सब चीजें जो भी है अलवायज आप यूज कर सकते हो आपको कंपोजिट बनाने के लिए। नेक्स्ट है सिरामिक्स, जितने भी हार्ड पार्टिकल हैं वो सारे सिरामिक्स में आते हैं, जैसे ग्लास, ग्लास भी ग्लास, उसके बाद सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सरमिट्स, सरमिट्स आपको एक हार्ड पार्टिकल होता है और सेमीकंडक्टर सरमिट्स आते हैं। सिरामिक्स, सिरामिक्स जितने भी हैं जो आपको पत्थर हो गए, टाइल्स हो गए, मार्बल हो गए, सारे सिरामिक्स के अंदर आते हैं। सीमेंट्स, सीमेंट्स भी आपको सिरामिक्स के अंदर आता है। कार्बन एंड ग्रेफाइट, फोर्थ है जो मैट्रिक्स है वो कार्बन और ग्रेफाइट जो आपको मैट्रिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसमें आप रेनफोर्स कर सकते हैं ग्लास को, फाइबर को, पॉलीमर को, अलग अलग मटेरियल को हम रेनफोर्स करके बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। आई एम ऑडिएबल? ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिक पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, पीएमसी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबसे ज्यादा यूज होता है। एक एफआरपी होता है, फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, और फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, और दूसरा है पीएमसी आपको पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट। ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टू मेन काइंड्स ऑफ पॉलीमर आर थर्मोसेट्स एंड थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट्स और थर्मोप्लास्टिक है। आगे डिस्कस करेंगे कि थर्मोसेट की क्या प्रॉपर्टी है और थर्मोप्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट चैप्टर है प्लास्टिक उसमें। तो थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथायरीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, अलग अलग टाइप के नाइलॉन्स हैं। थर्मोसेट्स में इपॉक्सी है, ये अलग अलग टाइप्स के हैं। इसको आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम देख लीजिए। नेक्स्ट जब चैप्टर करेंगे उसमें सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। थर्मोसेट हैव क्वालिटी सच एज वेल बॉन्डेड 3 डायमेंशनल मोलिकुलर स्ट्रक्चर आफ्टर क्यूरिंग। क्यूरिंग में होता है ठंडा करना, ठंडा करने के बाद उसके पास जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है थर्मोसेट के पास। तो थर्मोसेट के पास क्या होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर रहता है। दे डिकम्पोज इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग ऑन हार्डनिंग, दे डिकम्पोज मेल्टिंग ऑन हार्डनिंग। एंड थर्मोसेट्स, थर्मोप्लास्टिक को हम रीमेल्ट कर सकते हैं, जबकि थर्मोसेट मतलब सेट हो गया, उसको हम रीमेल्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अभी यूज होता है मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, एमएमसी। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएमसी। मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट आर हाई स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर टफनेस एंड स्टिफनेस are offered by metal matrix than those offered by their polymer component। देखिए पॉलीमर क्या है, पॉलीमर एक टाइप्स ऑफ प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के पास स्ट्रेंथ कम होगा, प्लास्टिक के पास स्ट्रेंथ कम होगा, लेकिन मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, मेटल है तो मेटल के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट बनाओगे तो आपको हाई स्ट्रेंथ आपको मिलेगा। जैसे फाइबर ग्लास, फाइबर एनफोर्स्ड ग्लास, ठीक है, इस तरह से एल्युमिनियम फाइबर, ठीक है, इस तरह से बनता है जो आपको बहुत ही हार्ड स्टिफनेस। तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट आर हाई स्ट्रेंथ, इसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेंथ क्या होता है, कितनी मैक्सिमम लोड वो सह पाएगा ब्रेक होने से पहले। जब हम स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम लोड सस्टेन बाय ए मटेरियल बिफोर फ्रैक्चर, किसी भी मटेरियल को फ्रैक्चर होने से पहले कितना मैक्सिमम लोड वो सह पाएगा, उसको हम स्ट्रेंथ से डिफाइन करते हैं। तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट के पास हाई स्ट्रेंथ होता है। फिर फ्रैक्चर टफनेस, फ्रैक्चर के टाइम पे उसकी टफनेस कितना है। टफनेस क्या है कि जब सडनली लोड लगाते हैं, किसी भी चीज में जब सडनली लोड लगाते हैं तो कितना एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है ब्रेक होने से पहले, उसको हम टफनेस में डिफाइन। एनर्जी ऑब्जॉर्व बाय द मटेरियल बिफोर ब्रेकिंग इज कॉल्ड टफनेस। तो फ्रैक्चर के पहले कितना एनर्जी वो ऑब्जॉर्व करता है और उसको फ्रैक्चर टफनेस से डिफाइन किया जाता है। एंड स्टिफनेस अभी बताया कि स्टिफनेस हाउ स्टिफ मटेरियल इज, मतलब इंपैक्ट लोड लगाएंगे तो ब्रेक होता है, बेंड होता है, तो कितना सस्टेन कर पाता है अपने आप को
वो स्टिफनेस को डिफाइन करता है। स्प्रिंग में स्टिफनेस डिफाइन किया जाता है। Then those offered by their polymer composite, they can withstand elevated temperature. अब सबसे important property क्या है metal matrix composite का, ये with they can withstand elevated temperature. Elevated temperature का meaning क्या होता है? High temperature. ये जो मटेरियल है हाई टेम्परेचर को वियर करता है, हाई टेम्परेचर पे कोरोजन इसमें नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे मेल्टिंग नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या होगा कि 100-200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट करोगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको एरोस्पेस में कोई कंपोनेंट बनाना है, एरोप्लेन का कोई कंपोनेंट बनाना है, तो आप प्लास्टिक का नहीं बना सकते, क्योंकि जब हाई स्पीड से वो जाएगा उसमें फ्रिक्शन लगेगा, टेम्परेचर हाई होगा तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पे फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, ग्लास रेनफोर्स कंपोजिट, मेटल रेनफोर्स कंपोजिट इस तरह से मटेरियल को बनाते हैं और वो यूज किया जाता है कि हमको हाई टेम्परेचर, हाई एलिवेटेड टेम्परेचर मिल पाए। टरबाइन हो गया, टरबाइन हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पे रोटेट करता है, तो वहां पे मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट यूज किया जाता है। कोरोसिव एनवायरनमेंट, कोरोसिव मींस कोरोजन, कोरोजन होना, रस्टिंग लगना, कोरोसिव एनवायरनमेंट देयर पॉलीमर कंपोजिट। मेटल मैट्रिक्स के पास हाई कोरोजन रेसिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू पॉलीमर कंपोजिट। MMC is widely used in engineering application where the operating temperature lies between 250 to 750, 250 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से हम मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मैट्रिक्स मटेरियल। मैट्रिक्स मटेरियल कौन कौन सा होता है? स्टील, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड सुपर एलॉय। सुपर एलॉय जितने भी आपको स्टेनलेस स्टील हैं, आपको कॉपर एलॉय है, आजकल सुपर एलॉय में आ रहे हैं, आपको नायोबियम आ रहा है, एलॉयज आ रहे हैं, आपको बहुत तरह के एलॉयज आते हैं जो एडवांस मटेरियल जो है आपको आते हैं वो सुपर एलॉयज में आते हैं। नेक्स्ट इज द सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट। अब तो मेटल मैट्रिक्स फर्स्ट हो गया आपको पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, सेकंड हो गया मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, थर्ड हो गया सिरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट, CMC, शॉर्ट फॉर्म इज CMC। व्हाट इज द फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द सिरामिक्स। व्हाट इज द सिरामिक्स एंड वेयर वी यूज द सिरामिक। सिरामिक इज अ वेरी हार्ड मटेरियल। जितने भी स्टोन है, आपको मार्बल है, टाइल्स है, ग्लास है, सीमेंट है, सीमेंट के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे सिरामिक्स में है। तो सिरामिक्स इज द इंजीनियरिंग मटेरियल विच है वेरी हाई हार्डनेस प्रॉपर्टी। जितने भी हार्ड मटेरियल है वो आपको सिरामिक्स में डिफाइन किया जाता है। तो मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पे? सिरामिक्स हो जाएगा और इसमें आपको रेनफोर्स कर देंगे किसी अदर मटेरियल का। सिरामिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज द सॉलिड मटेरियल which exhibit very strong ionic bonding। इसकी केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बॉन्डिंग जो होता है, आयोनिक बॉन्डिंग, वेरी हाई आयोनिक बॉन्डिंग होता है इन जनरल। फ्यू केसेस कोवेलेंट बॉन्डिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब सिरामिक्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। गुड कोरोजन रेसिस्टेंस, इसमें कोरोजन बहुत कम होता है। स्टेबिलिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, इसमें मेल्टिंग होने के चांसेस बहुत कम होता है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको कंप्रेस बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता। जैसे टाइल्स को आप कंप्रेस करके दबा नहीं सकते रबड़ की तरह या दूसरे मेटल की तरह। दूसरे मेटल को जब आप कंप्रेस करोगे तो दब जाएगा, लेकिन सिरामिक्स जैसे स्टोन हो गया, जो भी है, आप कंप्रेस करोगे तो जल्दी आसानी से कंप्रेस नहीं होगा, वो ब्रेक कर जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। तो वैसा एप्लीकेशन जहां पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वहां पे आप सिरामिक का यूज कर सकते हैं। CMC are widely used in engineering application where the operating temperature lies between 800 to 1650 डिग्री सेंटीग्रेड। 800 से लेके 1650 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा कि 250 से 750 तक मेटल मैट्रिक्स यूज होता है, और वही देखिए सिरामिक्स को है 800 से लेके 1650 तक इजिली हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मेटल मैट्रिक्स इज द कार्बन मैट्रिक्स, कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट, कार्बन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें रेनफोर्स भी कार्बन का ही हुआ है और कार्बन हमारा मैट्रिक्स है। CCS आर द, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं C/CS। C/CS आर द डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली फॉर द पार्ट्स दैट मोस्ट ऑपरेटेड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर रेंज। तो जब भी कार्बन का मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जब भी आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कोई मटेरियल को यूज करना है तो वहां पे आप इस टाइप के कंपोजिट मटेरियल को यूज कर सकते हैं जहां पे वेरी ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो CCS आर डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, इसको डेवलप किया गया है for the parts that most operate in extreme temperature range, composed of carbon matrix reinforced with carbon yarn fabric, 3D woven fabric, 3D braiding। जो भी है फैब्रिक मटेरियल है 3D woven fabric। woven fabric एक ओवन आता है, ओवन में एक मटेरियल लगा होता है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं 3D woven fabric मटेरियल।
वो एक तरह का क्ले मटेरियल होता है, उससे वो मिलकर बना होता है। CCS composite meet application ranging from the rockets and aerospace metal carbon matrix rocket के और aerospace because of their ability to maintain and even increase the structural property at extreme temperature. Extreme temperature मतलब very high temperature पे ये अपनी प्रॉपर्टी को स्टेबल रखता है। देखिए बाकी जैसे स्टील है, आयरन है, कॉपर है, जैसे ही आप 400-500 के ऊपर जाओगे इसकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है। जितने भी मेटल है, मोस्टली मेटल, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज होने लगती है। जैसे उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है, उसकी हार्डनेस डिक्रीज होने लगते हैं, उसका टफनेस डिक्रीज होने लगता है। लेकिन जब हम कार्बन मैट्रिक्स बनाएंगे तो हाई टेम्परेचर पे इसकी प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपने एरोस्पेस बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, रॉकेट बना दिया, जैसे ही आप ऊपर उसको भेजोगे वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं है वहां पे टेम्परेचर कितना है। तो वहां पे अगर ऐसा मटेरियल को आपने बना के भेज दिया जो जिसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जिसका प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आपको लॉस्ट हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है रॉकेट आपका। तो वहां पे इस टाइप के मटेरियल यूज करते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस 1930 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2760 डिग्री सेंटीग्रेड, 1930 से 2760 डिग्री सेंटीग्रेड पे इजिली आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एक्चुअली इंक्रीज एट हायर टेम्परेचर। अब इसमें सबसे अच्छी प्रॉपर्टी इसको देखिए, हाई टेम्परेचर पे इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है अप टू 1930 डिग्री। 1930 जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें कुछ बहुत ज्यादा पे नहीं, लेकिन कुछ कुछ इसका स्ट्रेंथ आपको इंक्रीज आपको मिलेगा, डिक्रीज नहीं मिलेगा। हाई स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, हाई स्ट्रेंथ और स्टिफनेस है एज कंपेयर टू ऑल कंपोजिट। गुड रेसिस्टेंस टू थर्मल शॉक। थर्मल क्या है? जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो थर्मल शॉक होता है। जैसे इंजन में क्या होता है, जब हीट होता है फिर जब उसको बंद करते हैं तो वो डाउन होता है, उसमें थर्मल शॉक आता है, बहुत ज्यादा हीट होता है। जैसे जो सिलेंडर एंड पिस्टन है, पिस्टन और सिलेंडर है, जब उसमें हम कंप्रेस करके फायरिंग करते हैं तो पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, जब कंप्रेस करके फायरिंग करोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होता है, फिर डाउन होता है, राइज होता है, डाउन होता है, और राइज और डाउन होने के कारण उसमें थर्मल शॉक लगता है। तो वहां पे ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसमें थर्मल शॉक की रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा हो, अदरवाइज वो ब्रेक कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हर एक थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट, सर्विस टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, जैसे पीएमसी पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, एमएमसी मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट, कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट, ये सब सिरामिक्स मैट्रिक्स कंपोजिट और कार्बन मैट्रिक्स कंपोजिट। वो दिया हुआ है कि किसका किस टेम्परेचर पे उसका सस्टेन है, कहाँ कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो इस चार्ट को देख के जैसे भी आपको कभी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहां बोलेगा कि हमको ये कंपोनेंट बनाना है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज करोगे, तो सबसे पहले आप उसका सर्विस टेम्परेचर देखोगे, किस टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा, और उसकी कितनी हमको हार्डनेस चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, कितनी स्टिफनेस चाहिए, कितना टफनेस चाहिए, उसके हिसाब से आप कंपोजिट मटेरियल चूज करोगे। नाउ आई एम ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? No, ऑडियो sir. बोलो। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या है, अब तो हमने पढ़ लिया कि मैट्रिक्स क्या था, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो हम मैट्रिक्स उसमें मिला रहे हैं, जो मैट्रिक्स मिला रहे हैं उसको मैट्रिक्स का क्या फंक्शन है, होल्ड्स द फाइबर टुगेदर। अब देखो मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि हम रेनफोर्स करते हैं फाइबर को। मैट्रिक्स जैसे वुड, देखो वुड के बीच में जो प्लाईवुड होता है, प्लाईवुड के बीच में अलग अलग थोड़ा थोड़ा मटेरियल मिला के, अब दो लेयर ऊपर लेयर, एक नीचे लेयर, बीच में थोड़ा बहुत फाइबर डाल के उसको रोल कर दिया जाता है। तो सिंपल अगर पतला अगर प्लाईवुड रहे तो उसका स्ट्रेंथ नहीं होता है, लेकिन दो के बीच में थोड़ा सा फाइबर डाल के रोल कर दोगे तो उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसका जो, तो ऊपर और नीचे वाला दोनों उसमें मैट्रिक्स हो गया, अब बीच में फाइबर हो गया। उसका पर्पस क्या होता है, जो आपको मैट्रिक्स है, जो ऊपर नीचे वाले मैट्रिक्स है, वो फाइबर को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। अगर इधर उधर हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, उसका स्टिफनेस कम हो जाएगा। तो होल्ड्स द फाइबर टुगेदर एट एग्जैक्ट प्लेस, उस एग्जैक्ट प्लेस पे। प्रोटेक्ट्स द फाइबर फ्रॉम एनवायरमेंट। अब जो फाइबर है, फाइबर काफी कॉस्टली होता है और उसको एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो उसमें रस्टिंग हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट द लोड बिटवीन फाइबर सो दैट ऑल द फाइबर्स आर सब्जेक्टेड टू सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। देखिए अब क्या है कि जैसे हम
ऊपर से लोड लगाएंगे, तो लोड को क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या करता है कि लोड, जितने भी लोड लगा है सब हर एक फाइबर को अलग अलग इक्वल अमाउंट में बांट देता है। अगर इक्वल अमाउंट में नहीं बांटेगा, एक ही फाइबर पे सारे लोड लग गया तो वहीं से ब्रेक कर जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। जैसे आप 10 किलो न्यूटन का लोड लगाओगे तो 10 किलो न्यूटन में अगर 10 फाइबर आपने यूज किया है तो 1 किलो न्यूटन आपको सबके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा कि आपको मटेरियल ब्रेक नहीं करेगा, आपको ब्रेक नहीं। इनहांस ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी एंड लेमिनेट प्रॉपर्टीज को, हाँ, आपको लेमिनेट मीन्स होता है लेयर बाय लेयर चढ़ाना, लेमिनेट करना। तो उसकी प्रॉपर्टी को इनहांस करता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक होता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप फाइबर को रखते हो, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन हो गया। improve impact and fracture resistance of the component। इम्पैक्ट मतलब नाम से ही पता है, इम्पैक्ट लोड लगाना। किसी भी चीज में ऐसे सडनली आप इम्पैक्ट लोड लगाओगे, अगर वो ब्रेक कर गया तो उसके इम्पैक्ट को भी बढ़ाना होता है आपको। जैसे ग्लास है, ग्लास में इम्पैक्ट लोड बहुत ही आपको कम होता है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। ग्लास में थोड़ा भी लोड लगाओगे ब्रेक कर जाएगा, यानी उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ बहुत कम है। स्टील में क्या है, लोड लगाओगे ब्रेक नहीं करेगा, बेंड हो जाएगा, यानी स्टील का इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ज्यादा है। फ्रैक्चर रेसिस्टेंस मतलब इजीली फ्रैक्चर, एक होता है कि बेंड होकर रह जाए, एक होता है फ्रैक्चर हो जाए। जैसे आपको बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, जब आप उसको बेंड लोड लगाओगे तो दो टुकड़े में बट जाएगा। जैसे ईंट है, आपको ब्रिक्स है, ब्रिक्स जो ब्रिक है आपका, ब्रिक में लोड लगाओगे तो वो टूट जाएगा एकदम, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है। स्टील में लगाओगे तो बेंड हो जाएगा। हमें ऐसा मटेरियल बनाना है जो बेंड हो, आपको एकदम फ्रैक्चर नहीं हो, तो आपको लॉस हो सकता है। कैरी इंटरलेमिनार शियर, शियर जो है, जो शियर होता है मतलब दो चीज, दो सर्किट आपस में कट जाना, शियरिंग हो जाना, शियर फोर्स लगना। कैरी इंटरलेमिनार शियरिंग होने से डिजायर मैट्रिक्स। अब क्या है कि जो मैट्रिक्स है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहले रिड्यूस मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले उसको मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व नहीं करना। अगर मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करेगा उसका surface होने लगेगा, surface हो जाएगा, वो बन जाएगा, तो इससे वो ब्रेक कर सकता है। लोग वो तब कम होना चाहिए। लोग को पेशेंट का टेम्परेचर के अगर जैसे ही हाई टेम्परेचर तो वहां पे जाके वो ब्रेक हो सकता है, लो टेम्परेचर सर डिपेंड आवाज नहीं आ रहा। टेम्परेचर। हेलो सर, आवाज कट कट के आ रहा है सर। विरांशु सर, विरांशु सर, हाँ सर, आपके यहाँ नेट ठीक है? नहीं, आपकी आवाज नहीं सर, उधर का नेट नहीं ठीक तो है। ठीक है। नहीं नहीं, आप ऐसे देखिए किस लोकेशन पे बैठे हैं, क्योंकि नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज आपकी कट रही है। अब बोलिए तो। नहीं नहीं नहीं, कट रहे हैं। सर अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट होल्ड करो, मैं देख। हमारी हाँ नो सर, अभी थोड़ा क्लियर होगा, हाँ हाँ, अभी भी नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा है सर। बेटर है, अभी बेटर है। थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। हाँ, नेटवर्क की स्टेबिलिटी नेटवर्क आपका अभी पहले से थोड़ा बेटर हुआ। हाँ हाँ हाँ, बेटर है। यस सर। क्या हुआ सर?
नहीं आ रही है सर आवाज आपकी। हाँ अभी आई सर। विरांशु सर। पहले नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर। हाँ हाँ अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। नेटवर्क ठीक। प्रॉब्लम हो रहा है सर आपका। विरांशु सर, ये म्यूट किए हुए हैं आप। विरांशु सर अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। आवाज हाँ आ रही है सर। नहीं, नहीं। हाँ अभी आई थोड़ा सा। आपका नेटवर्क लगता है फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी आ रही है। सर क्लियर नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है। नहीं नहीं, हेलो सर। विरांशु, आप शुरू कीजिए। थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेबल होगा सर। हाँ ठीक है, शुरू कीजिए आप। अभी बेटर आवाज है। नो नो नो, नहीं हो पाएगा इस आवाज में। मौसम इतना खराब हो गया, कहीं भी प्रॉब्लम देगा। हाँ हाँ सर, इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा है। हम्म, सर मेरे साइड भी नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है सर। और सब जगह यही है बाबू। अभी तो बट विरांशु सर तो शांत हो गए पूरा। और लगता है उनका कट ही गया। हाँ सर। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, हाँ सर। बच्चा लोग को ये पीपीटी शेयर्ड है ना? नो सर। अरे वो बोल रहे हैं कि स्वाध्याय में शेयर किए हैं, आप बोल रहे हो नहीं। स्वाध्याय सर, स्वाध्याय, स्वाध्याय में है, हम लोग का फोन में डाउनलोड नहीं है। हाँ हाँ, तो स्वाध्याय में है तो आप लोग इस पीपीटी को अभी तक तो 10 नंबर तक तो वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। हेलो, अच्छा। यस सर। मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस सर सर। आ रही है। तो 10 नंबर पीपीटी तक तो वो शेयर कर चुके हैं, तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिए। और आपके पास जो यस सर। पहले से है या अभी जो उन्होंने बताया है उसको पढ़ लीजिए। और कुछ अगर डाउट है तो उस क्वेश्चंस को लिख लीजिए और वीरांशु सर को आप लोग व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अभी हम लोग वीरांशु सर को रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके सर। यस सर।
अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है, कोई उपाय नहीं है, ये तो मौसम का कमाल है। तो अभी तत्काल तो आप यस बारिश भी हो रही सर। हाँ सर बारिश तो हो रहा है बारिश सर। भी हो गया बारिश। हाँ हाँ, बारिश है, आंधी है, तो विधांशु सर इसमें क्या कर सकते हैं? तो सर ये लोग पीपीटी डाउनलोड करके भी पढ़ेगा कुछ देर। नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि ये लोग हाँ सर। जो क्वेश्चंस उसमें इनके दिमाग में है उसको ये लोग कागज पे नोट कर ले। अभी तो हाँ सर। डाउनलोड क्या करना है, वो तो स्वाध्याय खोलेगा तो मिल जाएगा। हाँ सर। डाउनलोड इज नॉट नेसेसरी। तो स्वाध्याय नहीं खुलता अभी। डायरेक्ट आप पढ़ के देख लीजिए, अगर कोई असुविधा है तो उसको नोट कर लीजिए और वीरांशी सर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके सर। हाँ, और मैं अपना नेट नहीं बंद कर रहा हूँ, मेरे यहाँ नेट चल रहा है। तो अभी ये अमर सर का क्लास है, तो आप लोग जैसा सोचो, चाहो तो हम एंड मीटिंग भी कर सकते हैं। क्या सर? आप लोग आओ, जब अमर सर आएंगे 12:40 में, 20 मिनट है, तब तक आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। जी सर। अगर विरांशु जुड़ते हैं तो विरांशु आगे चल लेके चलेंगे। सत्यप्रकाश, हाँ सर। बात करो विरांशु से, हो सकता है उसका कट। ठीक है सर। जस्ट बोलो कि जब आएगा। हाँ सर कर रहे हैं। हाँ, जब आएगा तब कनेक्ट कर लेगा। ठीक है सर। आवाज यस ठीक है सर। सर, विजुअल भी ठीक है। वेरी गुड।